class. Today I will teach you the subject Quality Control Lab. Before dealing this subject, I want to just add two things. First thing is that this lab has been added this year in RTU as the purpose of to improve your knowledge, to improve your practical knowledge about quality. All of you have already done this subject in 6th semester, whereas this lab has been added in 7th semester. We'll discuss lot. This lab contains 1 credit and 50 marks, in which 30 is your internal assessment and 20 is for end term exam, or the lab timing for end term exam is 2 hours. Before we'll starting this lab, I want to just ask you two questions. First, what is quality and why this is quality control? Because what is quality? Quality is fitness for use, means everyone have to look their own specification, own satisfaction for their particular product. Suppose if you are going to purchase a single pen, that on that case also you look for the quality, that whether it is as per or not, as it is as per your money basis, as whether it is 5 rupees pen or 10 rupees pen, means you are checking the quality. So here in the quality control lab, we are just do this study of everything that is related with the quality, means that's related with the quality specification, that is related with the quality nature, that is related with the quality range. Your first experiment is you have to done a case study on X bar chart and R bar chart of an industrial process output and process capability analysis for the process of any industry. You must have to know that for the purpose of production, or for the purpose of assembly, or for the purpose of running, you should know it that how can we work on this, means how can you find out that whether all the production from the sample within our limit or within or from our limit. So before starting this case study, first we will discuss about that what is X bar and what is R bar chart. Why we are doing X bar or R bar chart? Because we are just controlling, we are just looking our sample whether it is in limit or not. So we can say that a control chart is a graphical representation of the collected information. The information may be pertain to measure quality characteristics, or just quality characteristics, or simple. Or you can say that it defects the variations in processing and warns if there is any departure from the specific tolerance limit. It means that suppose if you are doing a production for finishing, you may fix the tolerance limit is between 0.2 mm to 0.4 mm. Within the production, it may be possible that worker will not look at seriously, or it may be there is a mistake. So from the sample, we may easily find out that this particular product is from the out of the chart, or whether this product is within the chart. We have to mention this. And for as a control chart, we have to know some variables, that is X chart, R chart, sigma chart, and etc. तो फर्स्ट वन इज डैट व्हाट इज एक्स एंड आर चार्ट. तो जब एक्स चार्ट की बात करते हैं तो एक्स चार्ट सॉज द सेंटरिंग ऑफ द प्रोसेस, डैट इज सॉज द वेरिएशन इन द एवरेज ऑफ सैंपल. सपोज वी हैव टेकन 20 सैंपल्स ऑफ 10 ईच लॉट. इट मीन्स डैट कि अगर हमने 10-10 लॉट के 20 सैंपल्स ले लिए, राइट, और अगर हमें ये ज़रूरत पड़े, इफ़ वी वांट टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन दीज सैंपल्स, what we'll do, we'll make the average of every specification for a particular sample, then we'll make the average of all samples. So we can say that simply the R chart shows the average of samples, whether it is maximum or minimum or what. तो और इन जनरली अपन X bar chart ही यूज करते हैं. whereas देखो, अब अपन ने सैंपल तो ले लिया, अब हमें ये भी तो पता चले कि इन सैंपल के भीतर विद इन रेंज क्या है प्रोडक्ट के बीच का, इनके स्पेसिफिकेशन का, इनके टोलरेंस का, वट एवर जो भी रेंज हमें फाइंड आउट करना हो. तो for finding this kind of range,
वी आर गोइंग विथ आर चार्ट। तो एज हमने जैसा कि एक्स चार्ट में किया था, ठीक ऐसे ही हम आर चार्ट में भी प्रोडक्ट का सैंपल रेंज निकालेंगे। कैसे? अब देखो, सपोज अगर हमने एक सैंपल के अंदर 10 ले रखे थे, तो अब 10 में जो मिनिमम और मैक्सिमम का वेरिएशन होगा हमें रेंज पता चल जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास n टाइम सैंपल है, 20 सैंपल्स है, 10 हैं, जो भी है, हम उन सारे सैंपल्स के रेंज आउट फाइंड आउट कर लेंगे। वंस वी फाइंड द रेंज एंड आर एक्स चार्ट, मतलब नॉर्मल सैंपल चार्ट, देन वी मे मेक अ कंट्रोलिंग लिमिट्स वैल्यू दैट कि दिस इज द अपर कंट्रोल लिमिट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन, दिस इज lower control limit for this production, and this is the central line through which it may deviate from this value। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि x चार्ट और r चार्ट हमेशा हमें एक पर्टिकुलर सैंपल का वो हर चीज़ दे देता है जो हमें चाहिए। इट मीन्स डैट कि वो हमें हर रेंज बता देता है कि वेदर जो हमारा सैंपल है वो इस रेंज के अंदर है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा सैंपल रेंज से बाहर चल जा रहा हो। इट मीन्स विद इन द एक्स एंड आर चार्ट वी मे फाइंड ऑल दीज थिंग्स। अब सैंपल का क्या मतलब है? सैंपल का मतलब सिर्फ यही है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, वो वर्क क्या हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हम उस वर्क में से ही कुछ अलग अलग लॉट्स के सैंपल लेके विल चेक अबाउट दैट। अब आपने सैंपल चेक कर लिया तो अब आप क्या देखोगे कि वेदर आवर प्रोसेस इज कैपेबल और नॉट। डेफिनेटली। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी प्रोसेस की बात करते हैं तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमेशा 3 ही प्रोसेस होता है, डिजाइन, प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन। तो पॉइंट शुड बी नोटेड हियर। For checking the particular design criteria that we have given to our employee or worker for doing a particular production work, process capability shows that the range means it may work as inspection also. It is clear now? So we can say that कि through the process capability we may check all those whether it is all is in under control or not. If someone is not under control, then what we have to do means you can say that कि all the specifications or tolerance limit are usually find out during the process capability as per our desired is in design। means जो हमने डिजाइन में अपने टॉलरेंस या लिमिट्स इस्टेब्लिश किए थे, क्या वो टॉलरेंस और लिमिट पे ही प्रोडक्शन हुआ है? हैव यू गॉट इट? और अगर प्रोडक्शन उसी लिमिट पे हुआ है तो कितना हुआ है, किस रेंज पे हुआ है? तो ऑल दिस थिंग्स मे बी ट्रीट एज अ एग्जाम और ऑल में थिंग्स मे बी ट्रीट is in process capability. That's why we can say that for any industry or for any organization, process capability is always play an important role. One more thing I want to add here, that process capability, it can be, you can say that it is a statistical control or the natural process limit, that is UCL, ALCL, all can be determined by the +3 sigma from the mean. Have you got it? So we can say that the natural tolerance limit encompass 99.73% of area under the normal curve, and process capability is defined as 6 sigma. Okay, all of you are not what is sigma is? Standard deviation. I think you have done a lot of assignment on this 6 sigma, so no need to discuss too much more. But here in the process capability, these things are very important. Means अगर हम कुछ भी ड्राइंग्स से कुछ भी डिजाइंस कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले इनका रेंज क्या है, इनका मीन क्या है, इनका मीन का सैम्पल्स क्या है, देन वेदर इट इज़ फिट और नॉट। अगर हमने इन सारी चीज़ों को चेक कर लिया तो ऑल दिस थिंग्स मे बी नोन एज अंडर द प्रोसेस कैपेबिलिटी कंसिडरेशन। यू कीप इट इन योर माइंड। अब अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज, कभी कभार हो सकता है आपसे, इट मे बी आस्क बाय समवन दैट व्हाट इज द प्रोसेस कैपेबिलिटी रेशियो, तो यू नो नीड टू मच बरीड, यू नो ऑलरेडी व्हाट इज यूएसएल, व्हाट इज एलएसएल डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा। मीन्स हियर यूएसएल इज अपर स्पेसिफिकेशन और टॉलरेंस लिमिट, एलएसएल इज लोअर specification or tolerance limit. Later we'll discuss, we'll teach you that how to find USL, how to find
LSL, how to find sigma. So don't bother about it. Always remember that if the process capability ratio value is 1, it means that it indicates that the specific limits are exactly equal to the natural process of limits that you want. If the PCR is less than 1, it means that the difference between the specification limit is less than the tolerance limit, and there will be a large fraction of production that falls to meet specification. It means that कि अगर PCR लेस देन 1 है तो मीन्स जो आपका स्पेसिफिकेशन को ये फेल्स हो रहा है, मीट नहीं हो रहा है, फेल कर रहा है यहाँ पर, तो मीन्स यू हैव टू मॉडिफाई दीज थिंग्स. इफ PCR is greater than 1, it means that कि there is a small fraction, between the product specification कि for failing the meet real specification. If PR is larger than 2, say that specification limits is become too wide and not recommended at all. अगर अपन ने PCR 2 से ज़्यादा हो गया है तो इट मीन्स डैट कि जो अपना लिमिट है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, और इतना वाइड तो होता ही नहीं है. अगर ज़्यादा वाइड हो जाए तो टॉलरेंस जैसा टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करे. तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी अपन कुछ प्रोडक्शंस करते हैं या इनको चेक करते हैं तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कि हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फाइंडिंग द वे और फॉर फाइंडिंग द लिमिट. तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ यू फाइंड द प्रोसेस कैपेबिलिटी रेशियो, तो यू कैन ईजिली से डैट इट इज़ द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन USL एंड ISL divided by 6 sigma. If someone is asked you that what if the PCR value is 1, it means that कि the specifications limits are exactly equal to the natural process limit. If PCR is less than, it means that the difference between the specific limit is less than the tolerance, and if PCR is greater than 1, it indicates that specification limits are greater than natural process limit. और अगर PCR 2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब जो हमारा लिमिट्स है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, तो और जनरली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ कि व्हाट इज़ PCR, what will be the condition if its value is 1 or less than 1 or greater than 1 or greater than 2. Have you got it? Now, from the X chart and Y chart, what we can learn, आखिर कर क्यों रहे हैं? तो always remember that कि अगर X chart और Y chart हो तो हम ये पता कर लेते हैं this chart is very useful for maximum utilization information available from the data. It's also provide detailed information in process average, variation of controls of individuals dimensions. As earlier I told you that कि अगर हम प्रोडक्शंस वगैरह कुछ भी करते हैं तो हमारा अपना एक प्रोडक्शन होता है, हमारा अपना एक डायमेंशंस होता है, हमारा अपना एक टॉलरेंस लिमिट होता है. तो ऑल दीज थिंग्स विल बी इंटरटेन इज इन X और R चार्ट. अदर थिंग इज़ डैट कि सैम्पल्स जो होते हैं उनके सब ग्रुप साइज होते हैं. सैम्पल का मतलब बता दिया, जैसे कि मान लो 10 प्रोडक्ट ले लिया हमने एक सैंपल के अंदर, राइट, और हमने 10 सैंपल ले लिया तो सब ग्रुप हो गए. हैव यू गॉट इट? यस, यू नो. तो दीज टाइप्स ऑफ ड्रॉन कैन बी इंटरवल्स एंड मेजर्स. तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि जब भी अपन को ज़रूरत पड़ता है X चार्ट और R चार्ट्स बनाने के लिए तो प्रोसेस का बिहेवियर हमें पता चल जाता है, असाइनेबल कॉज पता चल जाता है कि प्रेजेंट है या नहीं है, और प्रोडक्ट क्वालिटी लेवल पता चल जाता है कि ये हमारे क्या अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट को मीट कर रहा है या लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट को मीट कर रहा है, या फिर हम जो चाहते हैं क्या उसके रेंज के अंदर है ये. तो ऑल दीज थिंग्स विल बी काउंटेड अंडर द X एंड R चार्ट. यू कीप इट इन योर माइंड. दैट्स व्हाई वी आर ड्राइंग द X चार्ट एंड R चार्ट. अब आखिर इस चार्ट को हम ड्रॉ कैसे करते हैं? इस चार्ट को हम ड्रॉ कैसे करते हैं? ड्राइंग का मतलब व्हाट विल बी द यूज़ ऑफ दिस चार्ट, हाउ कैन इट विल बी ड्रॉ. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो ऑर्डर्स रख लेंगे, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर वन इज वर्टिकल. मीन्स एक एब्सिसा रहेगा और एक वर्टिकल्स X और Y. अब हम क्या करेंगे, एक तरफ तो नंबर ऑफ सैंपल्स को रखेंगे, दूसरी तरफ उसके एवरेज, इन चीज़ों को रखेंगे. तो इट मीन्स डैट फर्स्ट begin to taking samples and place the numbers on the chart in the order they are taken. कि भाई ये पहले, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवें ऑर्डर्स पे लाया. After that what we'll do, we calculate all the average of each sample. Point should be noted here. जैसे हमने बेटा आपसे कहा था
कि एक सैंपल के अंदर हमने 10 प्रोडक्ट ले लिए, तो अब हमको 10 प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन होगा उसको नोट करना पड़ेगा और इस 10 का एक एवरेज निकाल लेंगे। इट्स ओके ना। इस तरह से हम कितने सैंपल का निकालेंगे, अगर हमने एन टाइम्स यानी कि हमने 20 सैंपल ले रखा है तो 20 सैंपल का एवरेज निकालना पड़ेगा, लेकिन 20 सैंपल का एवरेज निकालने से पहले हम विद इन द सैंपल जो अपने 10-10 इनका एवरेज निकालेंगे। हैव यू गॉट इट? तो पहले 10-10 सबका एवरेज निकाल लिया, 20 बार निकालेंगे 20 सैंपल के लिए। क्यों? क्योंकि हर सैंपल के अंदर 10 आइटम है। अब जब हमने हर 10 आइटम का सैंपल निकाल लिया, आफ्टर डैट हम इनका एवरेज निकालेंगे, तो फाइनली क्या होगा, हमें हमारा एक एवरेज पता चल जाएगा, ओवरऑल एवरेज पता चल जाएगा। हैव यू गॉट इट? अब आप लोगों को एवरेज तो निकालने आता होगा मेरे ख्याल से, कुछ भी नहीं करना, जैसे सिंपल एवरेज निकालते हैं कि वेटेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, बस यू विल फाइंड द एवरेज। जब आपने एवरेज निकाल लिया, इसके बाद हम निकालेंगे रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वापस से चलते हैं, ईच सैंपल के अंदर चलेंगे। जैसे सैंपल नंबर 1 कंटेन 10 आइटम्स, तो फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ दिस आइटम। सपोज अगर 250 कोई मैक्सिमम लिमिट होगा किसी चीज़ का, और व्हाट इज़ द मिनिमम, सपोज अगर ये 240 हो जाए, तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो डिफरेंस होगा इट विल ट्रीट एज अ रेंज। यू कीप इट इन योर माइंड। जब आपने रेंज निकाल लिया तो फिर वापस से आप क्या करोगे, इस तरह से अपन ने 20 सैंपल का रेंज निकालेंगे विद इन द सैंपल, कि भाई इस 20 का सैंपल के अंदर जो 10-10 सैंपल थे इनके बीच का ये रेंज है। वंस यू फाइंड द रेंज, वापस से क्या करेंगे, इनको डिवाइडेड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर देंगे। वंस यू डिवाइडेड यू विल फाइंड द रेंज। इट इज़ क्लियर ना? अब जब आपने रेंज निकाल लिया तो आपको करना क्या है, आपको एक ग्राफ कैलकुलेट करना है और आपको सबसे पहले पता करना है कि ये जो एवरेज निकाला था इसमें व्हाट इज़ द मैक्सिमम और व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट। जब आपने मैक्सिमम और स्मॉलेस्ट रेंज निकाल दिया किसी ग्राफ का, मैक्सिमम और स्मॉलेस्ट रेंज फाइंड आउट कर लिया, तो अपन एक ग्राफ पे देखो, पॉइंट शुड बी नोटेड हियर, अपन रेंज का एक अलग ग्राफ बनाएंगे एक्स और वाई एक्सिस पे। ठीक ऐसे ही एवरेज का भी एक अलग ग्राफ बनाएंगे एक्स और वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब हम इन कमिंग स्लाइड विल डिस्कस दैट कि भाई ये प्लॉट कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे पुट करते हैं। तो यू नो नीड टू टू मच वर इट, बट before writing this we have to make in consideration of 4 things. First thing is that कि how many items is in each sim, okay, how many items is in each lot. After that, what is the average value of that each lots. After that, what is the total value of each lot. Same as in the case of range, we have to see that what is the maximum value of each range, what is the minimum value of each sample range, what is their difference, and once we decide them, we find that how can it may convert from average range. It is clear now? Let's see a graph. Yeah, before seeing the graph, let's see a example of case study, so that we can easily understand that कि how it will be drawn. अब केस स्टडी क्या है कि वी आर कंसिडरिंग 10 फिनिश्ड वर्क पीस फ्रॉम फिटिंग वर्कशॉप ऑफ आवर एनालिसिस. ये कह रहा है कि हमने फिटिंग शॉप से 100 फिनिश्ड वर्क पीस ले लिया. ओके, विड्थ ऑफ ईच वर्क पीस को हमने मेजर कर लिया, राइट, और हमने ये मान लिया कि ये हमारा डिजायर्ड डायमेंशंस था. तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जो 100 फिनिश्ड वर्क पीस है ये हमारे डिजायर्ड डायमेंशंस को फुलफिल करता है या नहीं, विद इन द रेंज इन सैंपल के अंदर है या नहीं. लेट्स सी, अगर नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, और होगा तो व्हाट वी कैन डू. सबसे पहले इसने क्या किया, इसने टोटल कितने वर्क पीस थे बेटा, 100, राइट. तो इसने टोटल 20 ग्रुप्स बना लिए, 20 सैंपल्स ग्रुप बना लिए, और फॉर ईच सैंपल ग्रुप्स इट्स पुट 5 वर्क पीस. इट मीन्स
If you put a 5 workpiece in a one sample group, तो 420 it will be 100, मीन्स हमने टोटल 100 वर्कपीस ले लिया. अब देखो, जब हमने 100 वर्कपीस ले लिया तो सबसे पहला काम हमने आपको क्या सिखाया था कि सबसे पहले हर सब ग्रुप का एवरेज ले लो. मीन्स फॉर सैम्पल 1 देयर इज अ 5 सब ग्रुप्स 1 2 3 4 5. अब हमने इन सब का एवरेज ले लिया है, सब ग्रुप्स का एवरेज, तो 38 आया. एज it is for the groups 2 3 4 5, the average of each subgroup will be 38.6 37.4 and so on. Now have you know that? I think you have already understand that how you find subgroup average. Just add 39 39 38 37 37 for group A, okay, and divided it by 5, then you find the subgroup average is 38. Okay, now see the what the range is. For group 1 the subgroup total subgroup is 5 and the maximum value is 39 and the minimum value is 37, so that the difference is 2. That's why the range is 2. It is clear now? एक और देख लेते हैं. देखो, for subgroup 6 the maximum value is 40 and the minimum value is 38, so the range is 2. It is clear now? I think it should be. अब देखो एक बार, for group 5 the maximum value is 39 and the minimum value is 36, that's why the range is 3. Let's see for subgroup. No, don't see for subgroup. For groups 9, for groups 9, again it's a 5 subgroup. The maximum value is taken by group 3, that is 39, and the minimum value is taken by the subgroup 4, that is 35. Let's see, we are seeing in group 9 the value of subgroup of 3 is maximum and subgroup of 4 is minimum, and the total difference is 4. That's why the range is 4. I think now you can understand it that how can we find the subgroup average and how can we find the range. For finding the range, we just divide the for each within each group the maximum value minus minimum value. It is clear now? After that, finding the x bar, what we'll do, we just add all the subgroup average and divided it by 20. So the value of x bar is 39.7. Whereas for finding the value of r bar is, we just add all the range value and divided it by 20, and the value is 2.9. Now I think it is clear. This is the value of calculations formula that how you find x bar, how you find r bar. No need to be too much discuss about it, because we just add the average of x1, x2, x3, x4 till 20, divide it by 20, we will find the value of 39.7. Whereas for the r bar, just as r1 plus r2 plus r3 plus r4 plus r5 till r20 and divided it by 20, so that we find r bar is 2.9. Listen, when there is a value is given, for then there is some value of sigma, because we have to always take notation of factors of x chart and factors of r chart. This formula, this value of a2, d3, d4 will be used later. So here from the sample chart, from the sigma chart, we find the value of a2. Let's see, we just take a small screen of table. You may see here, it is just a normal table, it is given everywhere, so you no need to worry. If the sample size is 5, let's see here in the factors of x chart, a2 is 0.58, d3 is 0 and d4 is 2.00. Is it? No, it is no, gentlemen. d4 is 2.11. Okay, so when you are looking for chart, do it carefully, because any mistake can be done, a big mistake, because will not take your own specification limit. Now when
we find A2, D3, D4, then we go for the value of X chart. For the X chart, UCL upper control limit is the mean of X bar chart plus A2 into R. Okay, here R is given, value of A2 is from chart, and the value of X bar you have just solve it. So the total value of UCL is 41.382, whereas total value of LCL is 38.018. Whereas for the R chart, UCL is D4 into R. Value already you have taken from the table of D4. You have already the value of R. So you may already find out that 6.011. And the range limit is D3 into R, or D3 is 0 for the n sample 5. That's why the lower limit is 0. Now we see in chart that what type kind of change is possible, or whether the chart is okay. Let's see, this is your R chart. No issue at all. We put here the value of 0 and upper value is X, 6.2, and all the values of range that you have taken earlier in your table you put here, and you find it that all the value of range are within the chart. Okay, so this is your R chart. I think you don't have any confusion. Once we just put the value that where one sample 1 is exist, range is exist, sample 2 range is exist, sample here the number of sample is on the vertical axis, the value of UCL, the value of LCL and the value of range is okay. So हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल फॉर सैंपल 1, फॉर सैंपल 2, फॉर सैंपल 3, फॉर सैंपल 4, फॉर सैंपल 5 टिल 20, और वाई एक्सिस पे लिखेंगे सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, सैंपल 5, सैंपल 6, सैंपल 7 कि जो रेंज की वैल्यू है. इट मीन्स डैट कि हमने देख लिया भाई मैक्सिमम रेंज कितना आ रहा है, अब हमने पुट कर दिया 1 2 3 4 से लेके, क्योंकि अभी अभी हमने UCL निकाला था 6.2 तक, तो हम इधर वैल्यू लिखेंगे, इधर नंबर्स ऑफ सैंपल लिखेंगे. अब इसके बाद इस ग्राफ के अंदर जो जहाँ एग्जिस्ट कर रहा है उसको सिर्फ पॉइंट करके उसके बाद मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे एक दूसरे से. फिर देखते हैं कि क्या कोई वैल्यू रेंज से बाहर जा रहा है, तो बिल्कुल नहीं जा रहा है. अब देखते हैं एक्स चार्ट पे. जब अपन एक्स चार्ट की बात करते हैं तो वापस से अपना क्या है बेटा, अपन ने LCL निकाला जो 38.01 आ रहा था, UCL 41.38 आ रहा था. वापस से एक्स चार्ट के अंदर भी यही करेंगे, जो अपना एक्स एक्सिस है इसके अंदर अपन 0 1 2 3 4 5 7 0 ओरिजिन पे रखना, मतलब 0 कोई नंबर ऑफ सैंपल्स तो होता ही नहीं है, तो 1 2 3 से चालू करेंगे और 20 तक लिखेंगे एक्स एक्सिस पे. और on y axis we just put the value of the average like 34 35 36 37 38 39 40 whatever जो भी आता है. अब हम क्या करते हैं, हम अपने UCL पे एक टिक लगा लेंगे, डेट इज़ 41.382, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, और एक LCL पे टिक कर लेंगे जो अपना वैल्यू है 38.01. अब हम ढंग से इस चार्ट को देखते हैं, ढंग से इस चार्ट का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये चार्ट के अंदर क्या मिस्टेक्स है. तो अब देखो एक मज़ेदार बात, देखो पहले रिजल्ट देखते हैं चार्ट का. ओके, नो इशू. आर चार्ट के अंदर जो भी वैल्यूज़ थे वो लाई कर रहे हैं बिटवीन द UCL एंड LCL, वेयर एज इन केस ऑफ आर चार्ट सम वैल्यू ऑफ आर आउट ऑफ कंट्रोल. मीन्स कुछ वैल्यू उस चार्ट से बाहर आ रहे थे. देखो जरा, जैसे अब देखो यहाँ 38 से नीचे 0.01 से बहुत सारे वैल्यूज़ आपको दिख रहे होंगे, ये बाहर आ रहे हैं ना बेटा, ये इस रेंज के अंदर तो है नहीं LCL और इसके अंदर. तो अब अपन क्या करेंगे, तो अब अपन ऐसा करेंगे कि इन ग्रुप्स को एलिमिनेट कर देंगे और एक रिवाइज कंट्रोल चार्ट्स बनाएंगे. उससे क्या होगा, हमें एक रिवाइज कंट्रोल लिमिट मिलेगी. तो इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करना है जो हमारे विद इन द रेंज आए, जो हमारा विद इन द कंट्रोल चार्ट आ रहा है. अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, जहाँ जहाँ हमने एरो लगा रखा है, राइट, ये सारे के सारे वैल्यू 38.01 से ज़्यादा है और 41.382 से कम है. इट मीन्स सिर्फ यही एक 5 वैल्यू है डेट विल बी एग्जिस्टिंग बिटवीन द लिमिट ऑफ UCL एंड LCL. इट इज़ ओके. तो अब हम क्या करेंगे, वापस से इन सारे लिमिट्स का एवरेज निकालते हैं, फिर इनका R और X निकालते हैं. अब देखो आपको वापस से एक टेबल दिख रहा होगा. हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारे विद इन आ रहे थे हमने इनको ग्रीन कर दिया है. जैसे 38.6 तो अपने UCL से नीचे और 38.01 से ऊपर है. ठीक ऐसे ही जो भी वैल्यूज हैं ये इनसे ऊपर और इनके बीच में है. अब हमने सिर्फ इन 5 वैल्यू का एवरेज निकाल लिया, यानी एक्स बार निकाल लिया. ठीक है बेटा. ठीक ऐसे ही जो ग्रुप
हमने लिए हैं एवरेज सब ग्रुप के लिए, हम उस ग्रुप का रेंज निकाल लिए, रेंज देख लिया भाई इसके अंदर 3 8 2 है, तो all those who are showing as green it means that this range or this subgroup is within the limits. अब हमने क्या किया, ये जो रेंज गिवन है इस रेंज का भी रेशियो निकाल लिया भाई, इस रेंज का भी एवरेज निकाल लिया जो हमारा आता है 3.2. हैव यू गॉट इट? तो अब हमने क्या किया, उस चार्ट में से सिर्फ वही ले रहे हैं जो हमारे विद इन द लिमिट्स आ रहा है. अब हम उनका वापस से एवरेज निकाले, वापस से रेंज निकाले, और जब हमारे पास एवरेज रेंज आ गया तो आपके लिए अब काम आसान हो गया, आप वापस से UCL LCL निकाल लोगे. तो अब हमने वापस से क्या किया, देखो यहाँ पर लिखा ना हमने, फिर वापस से x1 x2, तो यहाँ पर अब n कितना हो गया 5, कितना हो गया बेटा 5. तो n1 n2 n3 n4 जब आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू 38.22 या 44 ही आएगी, आप देख लेना. वैसे जब रेंज की बात करें 3.2, वापस से सब ग्रुप तो n5 ही रह गए, तो A2 D3 इनकी सारे की वैल्यू अपने पास गिवन है फ्रॉम द चार्ट. वापस से हम इनका कंट्रोल लिमिट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, डेट इज 40.296 एंड लोअर कंट्रोल लिमिट इज 36.584. और जब आर चार्ट की बात करें वापस से तो D4 इंटू आर बार तो 6.7, और LCL D3 इंटू आर बार और D3 जीरो है तो जीरो ही रहेगा. तो अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज द रिवाइज कंट्रोल लिमिट, तो अपन कह सकते हैं रिवाइज कंट्रोल लिमिट फॉर आर चार्ट इज 6.752 एंड फॉर एक्स चार्ट इज it is UCL is 40.29 and LCL 36.584. Have you got it? तो जब आपने ये दोनों चार्ट निकाल लिए तो इट मीन्स अब हमारा रेंज पता चल गया है. अब हम चेक कर सकते हैं कि वेदर आवर प्रोडक्ट इज इन विद इन द रेंज और आउट द रेंज. तो क्या अब आपको पता चला कि भाई कैसे ऑब्जर्वेशन करना है एक्स चार्ट का, कैसे ऑब्जर्वेशन करना है आर चार्ट का, कैसे एक्स चार्ट बनाना है, कैसे आर चार्ट बनाना है. तो अपन कह सकते हैं अब कि ऑल the points in both charts are under control limits, processes seems to be under control, means only chance to cause variation are present in process. no, अगर अपने को ये पता चल गया तो अपने प्रोसेस एवरेज और ये सब चीज़ें भी तो निकाल सकते हैं ना. अपर नेचुरल लिमिट्स क्या होना चाहिए, लोअर लिमिट्स क्या होना चाहिए, ताकि अपने को प्रोसेस कंट्रोल के बारे में पता चले. तो अपन प्रोसेस कंट्रोल भी एक बार देख ही लेते हैं फिर फटाक से. अब देखो प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, जो प्रोसेस एवरेज होता है, और प्रोसेस एवरेज हम कौन सा लेंगे बेटा, जो हमारा रिवाइज्ड किया है हमने, डेट इज 38.44. वापस से जो आपके डेविएशंस है वो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस पता करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास आर रिवाइज्ड है डिवाइडेड बाई D2. भाई अभी आपने आर फाइंड किया है डिवाइडेड बाई D2 यानी 1.372. प्रोसेस कैपेबिलिटी कितना होता है 6 सिग्मा, आपको अर्लियर बताया था. तो डेट इज आपके पास सिग्मा की वैल्यू होगी 600 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8.25 आ जाएगा. नो यू कैन इजिली फाइंड द UCL एंड LCL. हैव यू गॉट इट? सिग्मा बार डैश प्लस 3 सिग्मा, सिग्मा बार डैश माइनस 3 सिग्मा. अब देखो मज़ेदार बात, ये यहाँ से 8.25 आ गया. अब देखो आप UCL और LCL को आप माइनस करके देख लो, 6 सिग्मा की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, ये वापस से 8.25 आ जाएगा. तो इट मीन्स डैट कि दिस प्रोसेस इज अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड यू कैन यूज दिस लिमिट्स फॉर योर फ्यूचर डिफरेंस. तो हैव यू गॉट इट बेटा जेंटलमैन, कि हाउ यू कैन फाइंड फ्रॉम एनी स्टडी हाउ यू कैन मेक द एक्स बार चार्ट, हाउ कैन वी can make the R bar chart, how can we make the process capability chart. Have you got it? Or the value of process capability. So this is all about your today classes, and thank you all.